start what? Continuity and differentiability, chapter 5. Continuity of a function. What is continuity of a function? And in 11th class you have already studied about finding limit of a function at a point. Okay, so first of all, continuity of function at a point. Continuity of function at a point, and you can write like this: at first a point, second at a point, in an interval, third in whole domain of function. Hello, Urvashi, Prem, Avijit, Rudra, Subham. So all are live ना? Hello, सब लोग सुन रहे देख रहे हो? Yes. Yes, sir. Continuity of function, continuity and differentiability. This is the new chapter. Just I am starting now new chapter. First of all, we have to understand what is continuity of function. So in the 11th class, just you are known about finding limit of a function. फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है, 11th क्लास में पढ़े हैं. सो वो यहाँ पर पढ़ना है ना, लिमिट की जरूरत पड़ेगी कंप्लीटली. सो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट, इन एन इंटरवल एंड इन होल डोमेन ऑफ फंक्शन. ओके, कंटिन्यूटी. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अंडरस्टैंडिंग, generally we are denoting fx as a function of x and y equals to fx, and this is function and its graph generally जो function है ना y equal to fx, its graph is what? A curve in two dimensional plane. Geometrically we can discuss about continuity. Geometrically means suppose we are drawing a graph of the function. ये अगर function है ना कोई, इसका ग्राफ बना रहे. This is x axis and this is y axis, and we can make plot its graph. So generally graph कैसा होता है? एक कर्व होता है, कर्व होता है, ठीक है ना? So y equal to fx. This is continuous. Geometrically if we see that, we can say that if curve of the function is continuous in its domain, then it is continuous function, because कंटिन्यू चलना चाहिए. जो ग्राफ है वो कंटिन्यू चलना चाहिए. इसी को मैथमेटिकली डिफाइन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट and in an interval and in whole domain. So whenever a function is defined, so its domain, कभी भी फंक्शन अगर डिफाइन होता है ना तो इसका डोमेन होता है. डोमेन, हेलो, डोमेन होता है कि नहीं? अगर फंक्शन डिफाइन है तो उसका डोमेन होता है. Yes, sir. सपोज fx इक्वल टू, हमने लिखा fx इक्वल टू, लिख दिया x स्क्वायर. दिस इज ए फंक्शन एंड इट्स डोमेन क्या होता है?
value of the function is defined for those values of x which are belongs to the domain. मतलब ये फंक्शन की जो वैल्यू है ये डिफाइन होना चाहिए फॉर विच वैल्यू ऑफ x. x का belongs to what? सेट ऑफ रियल नंबर. रियल फंक्शन के केस में क्या करते हैं, ये एक रियल लाइन होता है, दैट इज 0, दिस इज नेगेटिव साइड, दिस इज पॉजिटिव साइड, 0 to infinity, this is real line, and the value of x lie in this line. And take a point, एक पॉइंट भी ले सकते हैं 1, and we can take an interval. Interval means like this, in an interval, open interval, also open interval भी ले सकते हैं, closed interval भी ले सकते हैं. Means this is the place where function is defined. This is the place where function is defined. ये open में क्या होता है, ये ending point नहीं होता है, और closed में ending point is also including. So ऐसे वाले interval में, ऐसे वाले interval में भी function define हो सकता है. And at a particular point, इसी में से एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है कि नहीं. अदरवाइज सपोज ये इंटरवल एंड पॉइंट्स नॉट गिवन, देन जज करना है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको देख के समझ में आ जाता है कि बिकॉज सपोज दिस इज आवर फंक्शन, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स. देखो एक्स स्क्वायर है, you can take any point from the real lines. रियल लाइन में से कोई भी पॉइंट ले लो, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगा, इज डिफाइंड. बट अगर 1 upon x minus 1, it is not defined for which value, किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है. शैलेंद्र गुड. 1, why? क्योंकि यहां पर 1 रखेंगे तो नीचे 0 आएगा, तो दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर 1 के लिए डिफाइन नहीं है. बट सपोज +1 भी रख दे तो किस पे डिफाइन नहीं है. हेलो, x 1 upon x plus 1, x equal to -1. तो रियल नंबर में से, बिकॉज एक्सेप्ट x equal to -1, it is not defined. Except this defined. -1 नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर, it will be defined. Clear है ना? So we can see, we can watch what is the domain. We can identify what will be the domain for a function. अगर एक function given है ना, एक function is given, सपोज 2x, इसके डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, f(x) = 2x. दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सो इट्स डोमेन विल कंटेन होल रियल लाइन. और अगर इस टाइप से लिख दिया जाए f(x) = x upon x² - 1, x upon x² - 1, नीचे 0 ना आए, मीन्स डिफाइंड वैल्यू मिले. क्लियर है? डिफाइंड वैल्यू मिलना चाहिए. तो इसमें से उसको हटाना पड़ेगा. x² - 1, फाइंडिंग डोमेन ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन 11th क्लास में पढ़ चुके तुम लोग, है ना. f(x) = x upon x² - 1. तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट नहीं आएगा. हेलो, -1 रखोगे x की वैल्यू तो भी 0 हो जाएगा, +1 रखोगे तो भी 0 हो जाएगा. दैट इज -1 and +1. एक्सेप्ट -1 and +1, all the real numbers are the elements of the domain. डोमेन को आइडेंटिफाई करना है, कंटिन्यूटी तो देखना है. कंटिन्यूटी के पहले तो आइडेंटिफाई द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डोमेन को आइडेंटिफाई करना है. सो इसका डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट है, होल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 and +1. इसमें क्या होगा, डोमेन में
whole real number. Okay, so continuity जज करना है ना, continuity टेस्ट करना है. So you know finding limit of a function. Find limit, function का लिमिट कैसे फाइंड होता है पता है, 11th में पढ़े अच्छे से, डेरिवेटिव पे पढ़े थे थोड़ा सा. So now we have to check for continuity of the function at a point in an interval in whole domain of the function. इस फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. सपोज एट ए पॉइंट दिया है कि x इक्वल टू 2 पे मीन्स किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना और किसी एक इंटरवल में कंटिन्यूटी टेस्ट करना और फुल डोमेन में कंटिन्यूटी टेस्ट करना. फुल डोमेन मीन्स इसका टोटल रियल नंबर, इसका क्या होगा, रियल नंबर बट +1 और -1 को हटाना है. ओके, और होल डोमेन मीन्स रियल नंबर में भी इंटरवल दिया हो 0 to 5. इन दिस इंटरवल टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. सो कंटिन्यूटी टेस्ट करना है कहां पर, एक पॉइंट पे, एक इंटरवल में और एक होल डोमेन में. इफ ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स होल डोमेन then we can say that function is continuous only continuous at a point. मिस अगर जो पॉइंट दिया होगा, सपोज x इक्वल टू 2 दिया है और इस 2 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है फॉर एनी फंक्शन fx. सो वी कैन से दैट कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट करना कंटिन्यूटी और किसी इंटरवल में टेस्ट करना, वो इंटरवल में टेस्ट करना. और होल डोमेन मीन्स जज आइडेंटिफाई व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन. जो डोमेन होगा उस डोमेन की किसी भी एलिमेंट पे, किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. सो डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, यू कैन राइट डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. सो लिमिट पहले पढ़ के आए हैं, उसी से बेस्ड है कंप्लीटली फाइंडिंग लिमिट ऑफ ए फंक्शन. ओके, सो सी हियर, the function fx is continuous at a point x equals to a if limit x tending to a fx equals to a. Function fx is continuous at a point x equal to a if limit of the function at that point is equals to value of the function at that point. Okay, limit of function at point is equals to value of function at point. हेलो शुभम, चलो नमन. Yes sir. नमन, Yes sir. याद है लिमिट फाइंड करना, 11th क्लास में लिमिट फाइंड करना सीखे थे. Yes sir, याद है थोड़ा बहुत. वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट. लिमिट फंक्शन का लिमिट निकालना है एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है. देखो टेस्टिंग पॉइंट क्या है, ए. ये पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है तो उस ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल. ये दोनों इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट. देखो अंडरस्टैंडिंग पार्ट मेन है, क्वेश्चन बहुत सारा है, समझ लेना अच्छे से. नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट. ए पॉइंट बिकॉज ग्राफ बनाया था, हमने अभी बताया था किसी पॉइंट पे. सपोज ग्राफ मींस fx की जो ग्राफ बनता है, ये इधर ग्राफ बनता है और दिस इज साइड फॉर x एक्सिस.
x इक्वल टू ए हो सकता है, ये वाला ये पॉइंट ए है, ये पे कंटिन्यूटी, दैट मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू तो ये है, दिस वैल्यू मीन्स व्हाट एफ ए, एंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, एंड इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, सपोज फंक्शन का डोमेन ये इंटरवल, देन इस पॉइंट का लेफ्ट साइड भी होता है, इस पॉइंट का राइट साइड भी होता है। इफ फंक्शन, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन बाय पार्ट्स बाय दिया रहता है, जस्ट लाइक दिस f is equal to this when x lies between to 0 to 1 and 1 to 2, इस टाइप का फंक्शन होता है कि नहीं डेफिनेशन फंक्शन का, ये पार्ट वाइज है, इंटरवल वाइज है, मींस 0 to 2, ये 0 to 2 इंटरवल है, इस इंटरवल में दो पार्ट में डेफिनेशन दिया रहता है फंक्शन का। इन दैट केस यहाँ क्या हो जाता है कि बीच में जो पॉइंट होता है इसका लेफ्ट साइड भी रहता है, इसका राइट साइड भी रहता है, और अगर फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, नॉट पार्ट वाइज, देन क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। यू नो लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल। ये याद है कि नहीं सबको? हेलो, सबको याद है? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx इज इक्वल्स टू f। इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, when function is given, फंक्शन किस टाइप से गिवन है? पार्ट वाइज, देन इस पॉइंट का लेफ्ट साइड पे कुछ वैल्यू है और राइट साइड पे कुछ अलग वैल्यू है, देन यू हैव टू कंसीडर दिस डेफिनेशन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये इक्वल होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब आएगा? जब ये टारगेटेड पॉइंट है उसका लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू कुछ अलग है और राइट साइड में कुछ अलग है, then you have to use this left hand limit and right hand limit. If these two limit are equal, that is value of the limit in this. ये लिमिट की वैल्यू क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होना चाहिए, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की नेसेसिटी कब है? जब फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट वाइज रहेगा। जैसे वन का लेफ्ट हैंड साइड, सपोज फंक्शन की डेफिनेशन इस टाइप से दिया हुआ है, f(x) equal to this something here when x lies between 0 to 1 and x lies between 1 to 2, टोटल इंटरवल इज 0 to 2। सो 1 पे ब्रेकिंग हो रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट कहां दिख रहा है? यहां पर 1 पे ब्रेकिंग दिख रहा है। सो 1 का लेफ्ट साइड ये है, 1 का राइट साइड ये है। अगर 1 पे लिमिट निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ शुड बी इक्वल and is equals to the value of the function, then you can say function is continuous। ये कब जरूरत पड़ेगा? जब ये ब्रेकिंग पॉइंट पे डेफिनेशन होगा, और डायरेक्ट डेफिनेशन इन ए सिंगल लाइन, then you can use this। उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं मिलेगा, so direct you can find the limit। okay, so continuity of a function at a point, this is at a point because a point पे value of the function and value of the limit should be equal, then we can say the function is continuous at that point। okay, हेलो, समझ में आया कंटिन्यूटी की डेफिनेशन? हेलो, कुछ तो बोलो तुम लोग। हेलो, 11 आर ज्वाइन नाउ। शुभम, रिपीट करें? यस सर। देखो मेन चीज क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, है ना। अभी स्कूल में तो 2 ही लोग हो गए, बाकी सब घर में हो, पर इसको ध्यान से समझो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज द नेम ऑफ द चैप्टर। कंटिन्यूटी ही टेस्ट करना है शुरू में, फिर डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना है, वो सिंपल है, एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स पढ़े थे ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बट कंटिन्यूटी टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
और ये जो लॉजिकली ये जो बता रहा हूँ ये समझ में आना चाहिए, पहले ये समझ में आना है, यही मेन है, बाकी ये तो सिंपल है, ये मेन है। ये टेस्टिंग करने का रूल क्या है, फंक्शन ब्रेकिंग पॉइंट पे भी फंक्शन गिवन होता है और डायरेक्ट भी फंक्शन गिवन होता है। डायरेक्ट मींस जस्ट लाइक दिस f(x) equals to 2x, बस दिस इज फंक्शन, एंड टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट x equals to 1 कैंसिल। ये एक ही लाइन पे है, इसका लेफ्ट राइट नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग पॉइंट पे नहीं है। मे भी फंक्शन की डेफिनेशन ऐसा दिया हो कि f(x) equal to x and x is less than 0 and 2x square x is greater than equal 0। 0 पे ब्रेक करके डेफिनेशन गिवन है, सो 2 पॉइंट बना। अब 0 पे अगर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, 0 पे कंटिन्यूटी अगर टेस्ट करना है तो लेफ्ट साइड भी बनेगा, राइट साइड भी बनेगा। सो वी नो दैट द लिमिट, प्योर लिमिट एग्जिस्ट व्हेन इट्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल होता है। तो ये डेफिनेशन सेम है। ये लिमिट कब एग्जिस्ट होता है, जब ये दोनों होता है। अब इसकी जरूरत कब पड़ता है, जब ये ब्रेकिंग करके डेफिनेशन दिया होता है, और अगर ब्रेकिंग करके नहीं दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट यू कैन फाइंड द लिमिट। वो 11th में लिमिट फाइंड करना सीखे थे ना, वही चीज है, लिमिट फाइंड करना है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के डेफिनेशन में गिवन होगा। जैसे यहाँ पर 0 की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एट x equal to 0, 0 पे क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, हेलो देखो फंक्शन की वैल्यू x है व्हेन x लेस देन 0, फंक्शन 2x स्क्वायर है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल 0, मींस x equal to 0 है तो ये ही फंक्शन की वैल्यू है। सो फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होना चाहिए, f वैल्यू भी फाइंड करना है और लिमिट फाइंड करना है, दोनों इक्वल दिखना है, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगा। और ये जरूरत पड़ता है जब ब्रेकिंग में रहता है, ब्रेकिंग में नहीं रहता तो डायरेक्ट इसका यूज करते हैं। सो दिस इज द डेफिनेट कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, द फंक्शन इज continuous at a point x equal to a if this, that is this, and breaking point पे रहेगा तो इसके जगह पे ये यूज करना है, और ये सब इक्वल आया तो कंटिन्यूस हो गया फंक्शन एट ए पॉइंट कंटिन्यूटी। नाउ टेस्टिंग कैसे करता है, ये कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, इंटरवल में कंटिन्यूस कब होता है, इंटरवल में कंटिन्यूस। सो हियर the function f(x) is continuous in an interval ab। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, टेल मी, हेलो, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल? ओपन इंटरवल। से इंटरवल कितने तरह से लिखते थे, a b open interval, this is closed interval, means a and b included, and here a and b are not included. This is left open, right closed, this is left closed and right open, these are the interval, but generally open interval and closed interval की बात होती है। Here see open interval means a b नहीं होगा और इसके बीच का एलिमेंट, that is x lies between a to b, इसका मीनिंग ये होता है। और इसमें क्या होता है, ये a and b भी इंक्लूडेड रहता है। So f(x) is continuous in an interval ab, लिखा हूं open interval, if this for all, यहां पर इंटरवल का जो पॉइंट a लिया ना, दिस इज यू कैन राइट अल्फा लिख दिया, ठीक है, ab और ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ab। डेफिनेशन का मीनिंग बिल्कुल वही है। इंटरवल अगर ओपन है, सपोज दिस इज ओपन इंटरवल, सो इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल ab if this for all alpha belongs to ab। अल्फा को यहां यूज किया हूं, अल्फा इज ए पॉइंट इन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे, कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये नोटेशन लिखा हुआ है, you can say function is continuous in an open interval if it is continuous at all points of the interval, वही लिखा है, for all points alpha belongs to a, clear? and closed interval अगर लेंगे तो closed interval
इट इज इंपॉर्टेंट है ना क्लोज इंटरवल के बारे में देखना है एक डेफिनेशन क्लोज इंटरवल बिकॉज देखो ये जो क्लोज इंटरवल होता है क्लोज इंटरवल है क्लोज इंटरवल में ओपन इंटरवल ऑलरेडी इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा ए आ जाता है और एक्स्ट्रा क्या आ जाता है बी अब ये जो क्लोज्ड इंटरवल है ये जो लाइन बनाया ये ए और ये बी दिस इज इंक्लूडेड बी भी इंक्लूडेड है ये भी इंक्लूडेड है सो इसमें ए का राइट हैंड लिमिट बिकॉज लेफ्ट साइड तो नहीं है इसमें सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज इंटरवल के लिए अगर कंटिन्यूटी प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है ओपन इंटरवल में मींस इस जगह पे तो कंटिन्यूअस है इन बिटवीन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एट ऑल पॉइंट एंड आल्सो एट ए फ्रॉम राइट एट बी फ्रॉम लेफ्ट कंटिन्यूअस बिकॉज ये इस साइड की वैल्यू नहीं है इधर का वैल्यू है सो ए प्लस मतलब ए का राइट हैंड लिमिट एफ ए की इक्वल होना चाहिए एंड बी का लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल होना चाहिए दिस इज फॉर ओपन इंटरवल ये ओपन इंटरवल के लिए डेफिनेशन था एंड इन क्लोज्ड इंटरवल लेंगे तो क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल इफ दिस फर्स्ट ये होना चाहिए ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना है एंड देन ए पे लेफ्ट साइड से ए पे राइट साइड से बी पे लेफ्ट साइड से सेकंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट a किसके इक्वल होना चाहिए fa की इक्वल होना चाहिए कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड और b पे फ्रॉम लेफ्ट साइड limit x tending to b minus that is left side fx equals to fb left hand limit of the function fx at b is equals to fb की इक्वल होना चाहिए और यहाँ पर ये राइट हैंड लिमिट fa की इक्वल होना चाहिए this three should be satisfied for continuity in closed interval ओपन इंटरवल के लिए बस फर्स्ट लाइन इज सफिशिएंट एंड क्लोज्ड इंटरवल के लिए देखना है तो ये तीनों देखना पड़ेगा सो दिस इज कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल और ओपन इंटरवल है तो ओनली फर्स्ट लाइन इज सफिशिएंट एंड क्लोज्ड इंटरवल लेना है तो ये क्लियर है सो ये कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है इन एन इंटरवल ओके एंड फाइनली when we say that function is continuous only continuous not in an interval not in an at a point किसी point पे नहीं किसी interval पे नहीं only continuous function that means function is continuous at all the points of its domain इसका जो domain है just identify the domain of the function domain के हर point पे continuous that is when we say that a function is continuous a function fx is continuous function if किसी पॉइंट पे किसी इंटरवल में नहीं बोला ये फंक्शन fx is continuous function if it is continuous at all points of its domain D that is limit x tending to alpha fx equals to f alpha for all alpha belongs to D. हेलो ये डेफिनेशन समझ में आया फाइनली थ्री डेफिनेशन आर कंप्लीटेड नाउ बताओ कोई ना कोई ये डेफिनेशन समझ में आया लास्ट डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन हमने क्या दिया
पॉइंट पे कंटिन्यूअस क्या होता है, सेकेंड इंटरवल में कंटिन्यूअस क्या होता है, फाइनली फंक्शन इज कंटिन्यूअस. A function fx is continuous if it is continuous at all points of its domain. डोमेन के अंदर जितने सारे पॉइंट्स है हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए. सो फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द डोमेन इस अल्फा पे क्या होना चाहिए, दिस इज कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है. दिस ये क्या है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है. सो अल्फा पे कंटिन्यूअस है, अल्फा मे बी एनी पॉइंट फ्रॉम इट्स डोमेन, मींस डोमेन के ऑल पॉइंट पे कंटिन्यूअस है. देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ओके, हेलो, डेफिनेशन समझ में आया ना. अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, आज टाइम नहीं है ना. तुम लोग स्कूल में केवल 2 ही लोग हो. हेलो, यस सर. ओके गुड, पढ़ो, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना. सो नाउ टेक 1 or 2 क्वेश्चन. कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं. देखो अब कहाँ क्या कर रहे हैं, बहुत 5.1 एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है. बिकॉज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 7 या 8 एक्सरसाइज है और हर एक एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ना. सो मेन थिंग इज व्हाट, अंडरस्टैंडिंग पार्ट. कैसे समझ में आए. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कैन वी फाइंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट. ये तो 11th का टॉपिक है, जस्ट रिवाइज इट. ओके, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन. देखो इसमें क्वेश्चन है कुछ, अब इसमें एक दो क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है सब, है ना. प्रूव दैट द फंक्शन fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, x equal to minus 3 and x equal to 5. प्रूव करने वाला है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और 3 पॉइंट्स. देखो यहाँ पर एट ए पॉइंट, एट इन एन इंटरवल एंड इन होल डोमेन, ये 3 टाइप्स का होता है. तो एट ए पॉइंट वाला टॉपिक है ना, पॉइंट पे कंटिन्यूटी डिफाइन प्रूव करना है. कंटिन्यूटी प्रूविंग मींस व्हाट, एट ए पॉइंट. दिस इज द कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट मींस व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू a is the point, fx is equals to fa. You have to prove it. ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, a पॉइंट पे कंटिन्यूटी एट a, that is limit of the function at x equal to a is equals to value of the function at x equal to a. So here limit के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड कब जरूरत पड़ेगा, जब फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट वाइज होगा, ब्रेकिंग करके होगा, या ब्रेकिंग नहीं है. एंड अनदर थिंग इज व्हाट, ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. हेलो, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. 5x minus 3 is continuous. We have to prove that this is continuous at 0 पे continuous है, -3 पे continuous है, 5 पे continuous है. Very simple. एकदम सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे तो बिल्कुल सिंपल है, बट अंडरस्टैंडिंग पार्ट मेन है. ये दिस इज द गिवन फंक्शन एंड वी हैव टू प्रूव इट इज कंटिन्यूअस एट 0. दैट इज ये 0 हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू वही है और ये 0 हो जाएगा. सबकी वैल्यू निकालो, इक्वल आना चाहिए. ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं लेना है, राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं लेना है, क्योंकि दिस, इसका क्या डेफिनेशन है, टेल मी. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट, रियल फंक्शन के केस में व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. हेलो, बताओ. हेलो, रिप्लाई क्यों नहीं करते हो तुम लोग, समझ में नहीं आता. सभी लोग अटेंड कर रहे हो, ये मैं क्या किया अभी, देखो फट से कर दिया, रख दिया.
पर समझना मेन बात है ना, ऐसा तो हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, हजार बुक में लाखों क्वेश्चन मिलेंगे, पर समझना है ना कि गिवन फंक्शन इज दिस, जीरो पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है ना कि कोई भी फंक्शन दिया होगा तो डोमेन क्या है। तो पहले तो वही डिस्कस कर रहा था, इसका डोमेन क्या है। डोमेन मीन्स रियल नंबर, कौन कौन सा रियल नंबर है जिसके लिए ये डिफाइन है, ये वैल्यू वी कैन फाइंड फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर लो, इसकी वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि नीचे जीरो आ जा रहा है, रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? हेलो, इसका डोमेन फाइनल करना है। इतने सारे लोग पढ़ रहे हो, समझो, बिना समझे पढ़ोगे कुछ नहीं होगा। और सामने अब जो ऑफलाइन लगता है उसमें 2 या 3 लोग आते हैं, और जब घर में बैठे हो कुछ पूछ रहा हूं बता नहीं रहे हो। इसका डोमेन, बार बार चिल्ला रहा हूं, इसका डोमेन क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करते बनना चाहिए। तो x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि नीचे जीरो आ जा रहा है, रूट के अंदर माइनस आ जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं होगा। सो इट्स डोमेन इज व्हाट, इट्स डोमेन इज व्हाट, होल रियल लाइन्स, होल रियल नंबर, एनी रियल नंबर। बस इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। बट वो सेट ऑफ रियल नंबर नहीं, यहां पर तो प्रूव करना है कि जीरो पे कंटिन्यूस है, पॉइंट पे जीरो पे है, -3 पे है, 5 पे है, सब पे कंटिन्यूस होगा। और यही करना है। देखो क्या किया, यही जो डेफिनेशन है, एट ए पॉइंट, जीरो पॉइंट पे करना था, एक जगह जीरो लेना था, तो f0 निकाला, f0 निकाला, निकल गया -3। एंड लिमिट भी निकालना है। अब लिमिट में लेफ्ट राइट नहीं लिया, बिकॉज यार तो बाइफर्केशन है ही नहीं कि जीरो का लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, कोई भी वैल्यू हो यही होना है। सो इसलिए वो लेफ्ट राइट नहीं लेना है यहाँ पर। और ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x) इक्वल टू दिस। एंड यू नो लिमिट फाइंडिंग 11th क्लास में पढ़े थे, लिमिट फाइंड कैसे होता है। जस्ट अगर ये जो x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, ये जो जिस पॉइंट पे टेंडिंग होता है, टेंडिंग वैल्यू को अगर फंक्शन में रख दिया जाए और वैल्यू मिल जाए, दैट इज द प्रोसेस फॉर फाइंडिंग लिमिट। कभी कभी वैल्यू नहीं मिलता है तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है। सो यहाँ पर x इक्वल टू 0 रख दिया तो वैल्यू इसमें भी आ गया, सेम वैल्यू आया, -3 या -3 है। दैट मींस व्हाट, इफ लिमिट भी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, दैट मींस कंटीन्यूअस है फंक्शन 0 पे। Similarly, you can prove for x equal to, this is what we see that at, ये किसके लिए किया था हम लोगों ने, at x equals to 0, at x equals to 0 पे था ये। और सिमिलरली अगर अभी इस पे करें, at x equals to सेकेंड वैल्यू इज व्हाट, -3, यहाँ पर -3 ले लो, तो ये किस पे वैल्यू निकालना है, -3 पे निकालना है, -3 पे, -3 पे करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, 5 इंटू -3, सो इसमें भी वैल्यू आ जाएगा -15 और -3, -18, सो -18 वैल्यू आया। एट x इक्वल टू -3 पे है, तो एक की जगह -3 है तो -3 लिया, 5 इंटू -3, -18। सिमिलरली -3 पे लिमिट भी निकालना है, इसका भी लेफ्ट राइट नहीं है, सो डायरेक्ट यू कैन पुट x इक्वल टू -3, सो हियर fx दिस -3, यहाँ पर 0 की जगह पे -3 आ जाएगा, 5 इंटू -3, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू व्हाट, -18, सो दोनों सेम है, सो -3, -3, -3, क्लियर हुआ। 0 पे कंटिन्यूअस था, -3 पे भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, बिकॉज ये तो सिंपल फंक्शन है ना, इसमें वैल्यू निकालोगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालना है और लिमिट भी डायरेक्ट निकालना है, लेफ्ट राइट नहीं है। सो लिमिट भी निकाला तो भी आ गया -18, -18, दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बोथ आर इक्वल है तो कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे, -3 पे। सिमिलरली 5 के लिए भी कर सकते हैं, 5 यहाँ पर क्या है, एट x इक्वल टू 5, फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 आएगा तो 5 इंटू 5, 25 -3, यहां पर क्या वैल्यू लिखो बताओ, हेलो, सब लोग देख रहे हो ना, हेलो, फाइव और यहां पर 5, सेम प्रोसेस सेम है ना, प्रोसेस सेम है,
सो वैल्यू कितना आ रहा है 22, यहां भी 22 आना है, यस सर। दोनों वैल्यू सेम है तो 5 पे भी कंटिन्यूस हो गया। सेम प्रोसेस था, 0 के लिए, -3 के लिए, 5 के लिए कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, सो सिमिलरली यू कैन सी